Hello students, how are you? In the last video, we discussed about rounding of significant figures, rule of multiplication, etc. Today we will study about theory of errors. Beta, what do you mean by theory of errors? What do you mean by errors? Error means in Hindi as kamiyan, khamiyan, etc. Due to imperfection of experiments, due to our mistakes. कुछ मतलब कि एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन में कैलकुलेशन में कुछ कमियां रह जाती हैं. जैसे सपोज कोई रोड है, वो उसकी लेंथ 5 मीटर है एक्चुअल, लेकिन जो हमने इसको मेज़र किया, बट व्हेन वी मेज़र देन देर इज सम प्रॉब्लम, वी कांट मेज़र इट एज 5 मीटर, इट सपोज कम आउट टू बी 5.1 मीटर. then error is, error is, what do you mean by error? Error is true value minus measured value. True value is 5 and measured value is 5.1. Answer will be minus 0.1 meter. This comes out to be the error. This comes out to be the error. Error means कि हम एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है, हमारी जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है. दिस इज कॉल्ड एरर. ओके, नो दिस इज द एरर कि हम एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर जा रहे हैं. सपोज कीजिए इफ़ वैल्यू इज मेजर्ड एज सपोज actual value is 5 meter and we measured 5.1, then actual value minus observed value minus 0.1 meter is the error. Now listen, if we measure suppose 4.8, then it will be 5 minus 4.8, answer will be 0.2 meter. This is error. Okay, here minus 0.1 meter is the error. Okay, suppose we measure 5.3, then it will be 5 minus 5.3, it will be, tell me, minus 0.3 meter. Okay, but beta, listen one thing, if I ask which error is greater, this or this, okay, then you will say that, you will not say that this error is greater because this is minus 0.1 is greater than 0. Minus 0.3, no, this error is greater. Minus sign only determine us that the actual value is less than measured value or greater than. माइनस का बस ये मतलब है कि हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो एक्चुअल से ज़्यादा है या कम है. और ये माइनस का मतलब वो नहीं है कि आप ये कहेंगे कि माइनस 0.3 ग्रेटर है और ये जो है, सॉरी, माइनस 0.1 ग्रेटर है और ये कम है. नो 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 नो, आप सिर्फ माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. माइनस का सिर्फ मतलब डायरेक्शन से है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कम है या ज़्यादा है. दिस एरर इज ग्रेटर, this error is less than this, and this error is less than this error. Okay, fine. So this is the error. Now listen, there are some examples of error, types of error we can say that. First of all, systematic error. Systematic error. Beta, what do you mean by systematic error? Beta, listen, systematic error are those errors which are always in one direction, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं. जैसे कि बेटा लिसन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि सपोज कीजिए एक्चुअल वैल्यू 5 मीटर है, लेकिन हर टाइम जब भी हम वैल्यू मेजर करते हैं, व्हेन वी मेजर द वैल्यू कम्स आउट टू बी 5.1, 5.3, 5.4. ऑलवेज द मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू. Means the error is always, now here error will be minus 0.1, here error will be minus 0.2, here error will be minus 0.4. Means minus sign is always there. Means the error is always in the same direction. Okay, this is called systematic error. Now why, what are the causes of this type of error? Listen, there are many causes of it. One is instrumental error. There may be many causes like instrumental error. Listen beta, suppose कीजिए there is a meter scale. Okay, a company designed a meter scale, and in a meter scale, in a meter there are 100 centimeters. लेकिन by mistake the company has manufactured a meter whose length is suppose 98 centimeter. Suppose by some mistake it has measured the value 98 centimeter. Now listen, when you will measure a cloth who has actual length 1.2 meter,
when you will measure this cloth by this, then error will be, listen, then error will always be, it will be 1.4 meter, because this measure only 98 centimeter, then answer will be 1.4. When you will measure the cloth, you will see that the cloth has greater length, because the meter length is smaller. Okay, when you will measure the larger, when you will measure any length, then the length come out to be greater. Suppose you will measure a length of 1.2 meter, suppose, then due to it the length will be 1.4 meter, because this is of 98 centimeter. You will measure if any cloth, if any length, the length will be come out to be greater, because this has length 98 सेंटीमीटर. सपोज कीजिए मैं इतने बड़े लेंथ को 1 मीटर मानता हूँ, या फिर मैं इतनी बड़ी लेंथ को एक मीटर मान रहा हूँ. मेरे लिए तो ये 1 मीटर ही है ना अभी. चाहे मैं इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर मान रहा हूँ, चाहे मैं इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर मान रहा हूँ, तो अगर मैं इसको 1 मीटर मानूंगा ना, तो जाहिर सी बात है कि एक कपड़े की लेंथ क्या आएगी, 1 2 3 ज़्यादा आएगी. और अगर मैं इसको एक मीटर मान रहा हूँ, तो उसी कपड़े की लेंथ क्या आएगी, कम आएगी. मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कम आई है, लेकिन वो कमी इसमें है, मेरे में वो कमी नहीं है. मैं तो इसको 1 मीटर मान के चल रहा हूँ, 98 सेंटीमीटर. तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टमैटिक एरर. ओके, सेकेंड इज द imperfection of experimental technique. बेटा लिसन, imperfection of experimental techniques. मान लेते हैं बच्चे, we want to do an experiment. In the experiment there is a gas in container. Suppose there is a gas in container and gas should not be leaked out of the container. मान लेते हैं कि गैस है वो लीक नहीं होनी चाहिए. हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है और वो उस एक्सपेरिमेंट में जो गैस है वो कंटेनर से लीक नहीं होनी चाहिए. और हम कितना जोर लगा सकते हैं, कितने ऐसा सिस्टम बना सकते हैं गैस इसमें से लीक ना करे, लेकिन फिर भी अगर गैस थोड़ी सी भी अगर लीक कर रही है, तो वहाँ पर जो एरर आएगा वो यूनिडायरेक्शनल में आएगा, क्योंकि जो गैस है वो एस्केप कर रही है यहाँ से. सपोज अंदर हाई टेम्परेचर है, गैस अगर एस्केप कर रहा है, जो अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, और गैस जो है वो एस्केप कर रहा है, तो जो एरर की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, सिस्टमैटिक एरर हो जाएगा. ओके, बिकॉज हमारी जो टेक्निक है, हमने कितनी टेक्निक लगाई कि हम गैस को अंदर बाउंड करके रख सकें, उसको अंदर इंसुलेट कर सकें, आइसोलेट कर सकें. ओके, दिस इज द imperfection of the experimental techniques. Now, C is personal error. This is also example of systematic error. Beta listen, what do you mean by personal error? Personal means हमारी अपनी वजह से. सपोज कीजिए बेटा, लिसन, सपोज दिस इज अ लेंथ, ओके, एंड दिस इज अ मीटर स्केल. इसके ऊपर कोई मीटर स्केल मैंने रख दिया, इसको मापने के लिए इसके ऊपर मैंने कोई मीटर स्केल रख दिया. बेटा लिसन, एंड दिस इज द मीटर स्केल. ओके बेटा लिसन, मेरा जब लास्ट वाला लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा, ओके, अगर मैं उसको इधर से देखूं, इधर से, बेटा अब मेरी कमी है, मैं उसको मापने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ. अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूँ ना, तो देखिए बेटा क्या होगा, अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, तो यही लाइन पिछले वाले पॉइंट को कोइंसाइड करेगी. अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, तो यही वाली लाइन अगले वाले पॉइंट को कोइंसाइड करेगी. और अगर मैं इसको बिल्कुल 90 डिग्री से ऐसे देख रहा हूँ, फिर मेरी रीडिंग सही आएगी. अब मेरी अपनी कुछ कमियों की वजह से, सपोज मैं इसको इधर से देख रहा हूँ या इधर से देख रहा हूँ, ठीक है ना. अब मेरी सपोज मेरी आदत है कि मैं थोड़ा अपना फेस टेढ़ा करके देखता हूँ, इस तरह से देखता हूँ, इस तरह से ऐसे. ओके, तो मुझे ये जो लाइन है ना, वो इसके ऊपर कोइंसाइड करती नजर आएगी. इट मीन्स कुछ अपनी कमियों की वजह से भी सिस्टमैटिक एरर हो जाता है. दिस इज कॉल्ड द पर्सनल एरर. ओके, डी पार्ट, लास्ट इज एरर्स ड्यू टू external causes और एक्सटर्नल फैक्टर्स. लिसन हाउ, सपोज कीजिए बेटा, मैं सिंपल पेंडुलम की लेंथ मापना चाहता हूँ, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मापना चाहता हूँ, ठीक है ना, लेकिन हवा चल रही है,
एयर रेजिस्टेंस है। अब एयर रेजिस्टेंस है, सपोज बेटा, सपोज कीजिए मैंने किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकना है और मैंने देखना है कि कितने टाइम में नीचे पहुंचती है। अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो बेटा सीधी सी बात है, जाहिर बात है कि हमेशा जो आंसर आएगा ना उसको टाइम क्या लगेगा नीचे पहुंचने में, ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस होगा तो हमेशा टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। मैं कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर लूँ, हम हर बार जो टाइम आएगा वो एक्चुअल वैल्यू से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, बिकॉज देर इज द एयर रेजिस्टेंस, देर इज सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल causes. Okay, so these are the some examples of the systematic error, and errors always take place in the same direction. Next is beta random error. Second is random error. बेटा सिस्टमेटिक एरर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, बट रैंडम एरर जो है बेटा वो दोनों डायरेक्शन में हो जाते हैं। जैसे कि हम कोई सपोज कीजिए कोई एक्चुअल लेंथ है 5 मीटर, लेकिन मैंने उसको कई बार मापा, आंसर आया एक बार 4.9, एक बार 5.1। ऐसा क्यों होता है? कई बार मैं ध्यान नहीं देता, कई बार छींक नहीं आती। अच्छा बच्चे एक बात और बताता हूँ, वन थिंग मोर, सिस्टमेटिक इन केस ऑफ सिस्टमेटिक एरर द एरर इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। एक बात और, हमें पता है कि एरर एक ही डायरेक्शन में है और हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव कैसे कर सकते हैं बेटा? जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर था, 98 सेंटीमीटर है, उसको हम 100 कर सकते हैं, 100 की तरफ ला सकते हैं, इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसको हम करेक्टिव कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर है बच्चे, हमारा कभी ध्यान किधर है, हमारा आंसर चेंज आ गया, कभी छींक आ गई, ठीक है ना, कोई रैंडम कोई ना कोई ऐसी बात हो गई कि मेरे आंसर, देखो बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तो कभी आ नहीं सकता, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू बेटा जो है वो 5, अगर हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें 5 है, लेकिन जब उसको मेज़र करेंगे तो क्या पता 5.001 आ जाए। ठीक है ना, बिल्कुल पॉइंट इनफाइनाइटली पॉइंट तक हम बिल्कुल सेम नहीं जा सकते, हमारा ध्यान इधर उधर है, हमें छींक आ गई, ठीक है ना। सो मैनी कोजेज होते हैं कि कोई ना कोई एरर आ जाता है, और बेटा वो एरर इन बोथ डायरेक्शन होता है, नेगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है। हम उसको ठीक नहीं कर सकते, बट ए करेक्ट वे टू minimize it as, listen, to minimize it as, we have to take, suppose a road has length 5 meter, I will take this value, I will take this reading many times, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, many times, and finally I will find its average. The average will most probably close to the actual value. Any other reason is not there to minimize it, but in case of systematic error we can minimize these all, because these are the systematic error, these are in the same in the one direction, and these are in both direction, these may be in both direction, okay, positive or negative. So they are random error, we cannot minimize it, and the most probable minimized method is the we will do this experiment many times and we have to take the average of it. Okay, the average will most probably very close to the actual value. Suppose beta the actual length is 5 meter, in one time we measure 5.2 meter, in one time I measure 4.8 meter. Okay, a time will come beta, if many number we will take, if many experiments we will take, as many experiments we will take and we will take the average, the value will be closer to the 5 meter. Sometime we will take 4.9, sometime we will take 4.95, etc. in this way. Okay, so one method to minimize the random error is to take many observations and finally to take their average. Okay, this is the random error. But next is the gross error. C part is the gross error. Beta, what do you mean by gross error? Beta, gross error are the totally due to imperfection of the are totally due to carelessness of the observer. बेटा listen, अभी मैंने केयरलेसनेस की बात यहाँ भी की थी कि हमारी जो हम यहाँ पर हमारी यहाँ पर केयरलेस नहीं थी, हमारी एक आदत थी इधर से देखने की, लेकिन हम बिल्कुल ही अगर केयरलेस हुए, बिल्कुल ही हम अगर केयरलेस हुए तो हमारी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ही क्या आ जाती है, गलत आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस एरर, दिस इज टोटली ड्यू टू द क्यों बिल्कुल हम अवेयर ही नहीं है, हम बिल्कुल जो है वो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ले ही नहीं रहे हैं रीडिंग को, टोटली ड्यू टू द केयरलेसनेस
ऑफ ऑब्जर्वर। हम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अच्छे तरीके से उसमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिस इज द ग्रोज एरर। ना बेटा लास्ट पॉइंट इज देयर, डी पॉइंट, लीस्ट काउंट एरर। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट एरर? लीस्ट काउंट एरर, लिसन बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट होता है बेटा कि कोई डिवाइस कम से कम कितनी वैल्यू माप सकता है। अब बेटा सपोज कीजिए हमारी जो दीवार घड़ी होती है जिसमें एक सेकंड वाली सुई चल रही होती है, बेटा व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट क्लॉक? यू विल से 1 सेकेंड, कि वो कम से कम 1 सेकेंड का टाइम नाप सकती है, वो 0.2 सेकेंड वो नहीं माप सकती। ओके, स्टॉप वॉच होती है जो, जिसमें 1 सेकंड के 100 पार्ट्स होते हैं, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेकंड होता है, बिकॉज वो कम से कम जो उसकी वैल्यू है वो जो माप सकती है दैट इज 0.01 सेकेंड। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा माप सकती है। ओके, नाउ लिसन बेटा वन थिंग, जो मीटर स्केल होता है, जो 15 सेंटीमीटर का जो होता है, जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं, 15 सेंटीमीटर स्केल ऑफ 15 सेंटीमीटर, then better tell me what is the least count of it? You see that there is 1 2 3 up to 15 centimeter, and there also 10 parts of one, and 1 centimeter has 10 parts. This means one part is equal to 1 millimeter. Okay, 1 millimeter is the least count of this scale, this 15 centimeter scale. Okay, so beta when we study that, when we study over it, then most probably एरर अकर इज लीस्ट काउंट एरर। हमें ये लगता है कि जो हमारा जो एरर आएगा ना वो विद इन लीस्ट काउंट एरर के अंदर ही आएगा। दिस इज द लीस्ट काउंट एरर। ना बेटा दिस इज द थ्योरी ऑफ एरर, दिस इज द थ्योरी ऑफ एरर ऑफ सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रोज एरर और लीस्ट काउंट एरर। ना बेटा आई टेल यू वन मोर थिंग, व्हेन वी do a measurement, listen beta, accuracy, what do you mean by accuracy beta? What do you mean by accuracy? Accuracy means how close we are to the actual value. Suppose 5 meter is the actual length of the road. Suppose 5 meter is the actual length of the road, and I took the 4 observations. In one time value is 5.1 meter, in second time it is 5.2 meter, in third time it is 4.9 meter, in fourth time it is 5.3 meter. Okay, and my friend take the same value as 6.1 meter, 6.11 meter, 6.12 meter and 6.13 meter. Better tell me whose value is more accurate? Accuracy of my, यानी my accuracy is more than my friend, because I am in all cases I am very close to the actual value. My accuracy is greater, but beta precision of my friend is greater. How? Beta listen, in my values, listen, there is a difference of, listen, how much difference is there in each case? It has difference from actual value. Listen, it has difference. It is 5.10 and it is 5.20. How much is the difference? Difference is 0.10 meter. Here difference is 0.30 meter. Minus or plus, no problem. I am talking about the difference. Here difference is 0. This is 40 meter. बच्चे मैं काम तो कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू एक्यूरेट भी है, लेकिन मेरे काम करने का तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं इतने डिफरेंस पे चल रहा हूँ हर बार, लेकिन मेरे फ्रेंड जो है वो बिल्कुल इस एक्चुअल वैल्यू से दूर है, वो मेरे से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उसकी एक अच्छी बात है बेटा, उसकी हर बार देखिए बेटा उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.01 मीटर। इसमें डिफरेंस कितना है? 0.01 मीटर। इसमें डिफरेंस कितना है? 0.01 मीटर। वो कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मीन्स अच्छे तरीके से काम मीन्स वो एक्यूरेट वैल्यू से दूर है, लेकिन उसका काम करने का तरीका देखिए आप, वो काफ़ी कम डिफरेंस से काम कर रहा है। सो उसकी जो मेजरमेंट है वो मोर प्रिसिसिव है एज कम्पेयर टू मी। सो इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन accuracy and precision, accurate and precision, then you will say that if we are very close to actual value then we are more accurate, and if
the difference between two observations is very small, then this is greater precision. The values are having greater precision. Okay, thank you beta.